but kind of questions do come from these areas, and we will try to implement them onto some examples. For example, let us suppose I say कि आपके पास ये 4 reactions हैं, H2 plus I2. Then we take another example. This is gas. Let us suppose I say this is gas 2, this is gas 2, and then I give you this example. All right. So I gave these two equations to you, A and B, and my question is that which of these is going to shift the equilibrium in the forward direction by an increase in pressure. So the key idea is that you have to increase the pressure, and then you have to see which reaction is going to move towards the forward side by an increase in pressure. Okay, so what about equation number 1? Equation number 1 में आपको कितने moles reactant और products के नजर आ रहे हैं? जी, दो, yes, 2 moles here and 2 moles here. So basically we can say that यहाँ पे the moles of reactants and products are equivalent. So do you guys think कि यहाँ pressure का कोई effect होगा? नहीं. हम लिखेंगे pressure has no effect here, not affected by increase or decrease in pressure. और reason क्या लिखेंगे हम? Because the moles of gases are same on both sides. तो हमने theory का point भी discuss कर लिया, या are equal, are same on both right hand side and left hand side. Okay, let us talk about equation number B. How many moles do we have here? 3. 3 and 2 here. Yes. So pressure increase किस side पे लेके जाता है? less gaseous. लेस गैसियस मोल्स की तरफ. शाबाश. तो लेस forward. गैसियस मोल्स फॉरवर्ड होंगे. तो मैं कहूंगी दिस इज द रिएक्शन, दिस B is the reaction which will be favored by an increase in pressure. Is it clear to both of you? Yes. अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दीज आर ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर टेकन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स. उसमें सारा आया है. फिर उसने हमें ये क्वेश्चन दिया. उसने कहा ये है CH3OH. This is a gas, this is a gas, and this is a gas. The delta H for this reaction is minus 90 kilojoules per mole. The question is कि आपने ये बताना है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा. और सेकेंड क्वेश्चन इज रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क आएगा. नाउ दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आपने आंसर बताना है whether your equilibrium is moving towards the forward side or the backward side, like the stuff that we previously have been doing. And rate of reaction refers to telling whether your reaction is going to be speeded up, whether it's going to increase or decrease इस terms में. तो rate का आंसर हम हमेशा लिखते हैं in terms of increase or decrease. और जो position of equilibrium है वो हम बताते हैं हमेशा forward और backward की terms में. So these are the key points that you need to take note of. Okay, so what happens if you increase the temperature? मैं कहती हूँ 400 पे ये रिएक्शन हो रहा था, हमने 400 से भी ज्यादा टेम्परेचर कर दिया. So what does your understanding suggest? Provided the condition that the reaction is an exothermic reaction, तो क्या होगा? forward. टेम्परेचर इंक्रीज से एक्सो कहाँ जाता था? खुद सोचें. लेफ्ट को जाता था, बैकवर्ड जाता था, एंडो आगे जाता है. ठीक है लाइबा?
Okay, so temperature increase, Okay. shift the reaction to the left या back side. तो मैं position of equilibrium में क्या लिखूंगी? It moves to the left, ये left side पे जाएगा. और खुद सोचो बच्चे, अगर आपने टेम्परेचर को ज्यादा कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? Increase. इंक्रीज करेगा, बिकॉज जब आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात Increase. करते हो फिर हम कोलिजन्स की बात करते हैं. टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड मोर फास्ट. तो दीज आर द 2 points that we will be considering in our answer. Okay, so then we have another question. Let us suppose I say we have this example. So now everything is given to us in the gaseous form. All of them are gases. And delta H is equal to negative. Okay. So examiner is saying that which change to the mixture will increase the amount of Cl2 at equilibrium. So we want to increase the amount of chlorine in the equilibrium mixture. We have two possibilities. One is to add the catalyst. The other possibility we can do is to add more HCl. The third possibility is to decrease the pressure. And the fourth possibility is to increase the temperature. So what do you think can be done that will give us more amount of Cl2? Can you guys tell me that what is going to happen if I add catalyst to this reaction? क्या equilibrium पे कोई फर्क पड़ेगा? No effect. No No effect, effect. because हमने पढ़ा था equilibrium affects both the forward and the backward reaction to the same extent. Okay, what about the idea if I add more HCl? अगर मैं इस HCl को ज्यादा कर दूं तो equilibrium कहाँ पे जाएगा? Forward. फॉरवर्ड जाएगा. तो अगर फॉरवर्ड जाएगा तो Cl मुझे क्या Forward. मिलेगी? ज्यादा. ज्यादा मिलेगी. वी आर गोइंग टू बढ़ गेट जाएगा मोर. फिर. यस. तो हम कहेंगे दिस इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन, दैट एड मोर HCl. So when we add more HCl, the equilibrium will shift towards the forward side, and on the forward side we have Cl2, तो हमें वो ज्यादा मिलेगा. Okay, let us talk about C and D options as well to decrease the pressure. So how many gaseous moles do I have on the reactant side? 5. 5. 5. और यहाँ पे कितने हैं? 4. 4. अब जरा 4. खुद सोचो बच्चों, प्रेशर को कम करना है तो कौन सी साइड पे जाएगा? Gaseous. मोर More. मोल्स वाली साइड पे. इंक्रीज इन प्रेशर लेस गैसियस मोल्स की साइड पे जाता था, तो डिक्रीज इन प्रेशर मोर मोल्स की साइड पे जाएगा. वो पीछे हैं तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट या बैक पे जाएगा. सो वी विल गेट लेस Cl2. फातिमा, इज दिस क्लियर? जी हाँ. उसके बाद टेम्परेचर को इंक्रीज किया. अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो लाइबा कहाँ जाएगा? एक्सोथर्मिक Left. रिएक्शन है. यस. Left. लेफ्ट या बैक. So the only suitable option is this B option, which will give us more amount of Cl2. So this is the type of questions that are going to come in the paper. Okay, let us practice on to a few more examples. अगर वो आपको ये देता, these are all the questions that came in the past papers. BiCl3 है, then you have water, and then you have BiOCl solid, and then you have 2HCl. This is in the aqueous form. उसने आपको बताया है कि ये जो BiOCl है ना, it forms white precipitates. इसके white precipitates बनते हैं. अब उसने क्वेश्चन आपको ये दिया कि if the reaction is at equilibrium and HCl is added, इसके अंदर हम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्वस HCl को ऐड करेंगे तो बेसिकली क्या होगा? अब आप यहाँ पे देखो, उसने ऑप्शंस दी. पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ इक्विलिब्रियम कहाँ पे मूव करेगा, ये ऑप्शंस ले लेते हैं. और उसके बाद मैं यहाँ लिखती हूँ कि सोल्यूशन कैसी होगी. A, B, C, D. आप लोग सोच के बताना. मूव्स टू लेफ्ट, moves to left, moves to right, moves to right, and I can say
more white PPT forms. White PPT disappears. More white PPT forms. White PPT disappears. So these are the four options. अब हमने चूज करनी है. बच्चे खुद सोचो, अगर आप HCl डाल रहे हो ज्यादा तो इक्विलिब्रियम कहाँ को जाएगा? लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड अच्छा, पे अच्छा. जाएगा, बैक साइड पे चला अच्छा. जाएगा, पीछे को जाएगा. अगर पीछे को जाएगा तो मुझे पता है कि पेपर में से कौन से ऑप्शन सबसे पहले निकल गए. C and D. सी एंड डी. मेरा इन दो से कोई काम नहीं. राइट वाले ये मेरे आंसर्स हैं ही नहीं. मुझे ना इसको देखना है ना इसको देखना है. नाउ आई हैव टू चूज बिटवीन ए एंड बी. अब देखो व्हाइट प्रेसिपिटेट वाला कलर इस साइड पे लिखा हुआ है, यहाँ कोई कलर नहीं है. अगर मैं पीछे को जा रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी? व्हाइट प्रेसिपिटेट ज्यादा बनेगा या डिसअपियर होगा? डिसअपियर. वेरी गुड. सो इट्स गोइंग टू बी डिसअपियर्ड, क्योंकि अगर आगे आता तो फिर ज्यादा बनता. हुआ. नहीं बेटा देखो, यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट इधर लिखा है ना, तो अगर मैं लाइबा HCl को डालूंगी इक्विलिब्रियम अब पीछे जा रहा है. अब पीछे तो कोई व्हाइट पीपीटी नहीं है ना, फिर डिसअपियर होगा. फिर डिसअपियर होगा. अगर इस तरफ को कोई चीज इक्विलिब्रियम को लेके आ रही होती तो व्हाइट पीपीटी इस साइड पे है, फिर हम कहते कि वो ज्यादा होता. इस टाइम हम कहेंगे इट्स गोइंग टू डिसअपियर. सो बी विल बी द राइट आंसर. इज इट क्लियर? Yes. अच्छा, उसके बाद देखो बच्चे, उसने आपको ये दिया, ट्राई टू डू इट आउट. P है, Q है, then you have R, and together they form SNT. All of them are present in the gaseous form. अब उसने कहा कि इसके अंदर हम लोगों ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है. लेकिन उसने कहा कि T इज एडेड. अब T को टेम्परेचर ना समझिएगा, ये T टेम्परेचर है और ये T बेसिकली ये वाला T है, ठीक है. सो दिस वन. अब उसने कहा है कि इसके अंदर हम T को ऐड करते रहे हैं, विच इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अकर्स. तो अगर हम T को ऐड करते जाएं, किस किस चीज की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी? PQRS की, या PNQ की, या PQR की, या S ओनली? किसकी होगी? अगर आप T को इंक्रीज कर रहे हो तो कहाँ पे इक्विलिब्रियम जाएगा और क्या क्या बढ़ेगा? एस ओनली. ध्यान से देखो. PQRS. आप इसको इंक्रीज कर रही हो फातिमा. अगर आप इसको इंक्रीज कर रही हो तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? सॉरी, लेफ्ट साइड. लेफ्ट पी पे क्यू जाएगा. आर. तो P, Q and R. शाबाश, दोनों का बिल्कुल ठीक है. सो दैट्स गोइंग टू बी P, Q and R. बिल्कुल ठीक हो गया. ओके. सो लेट अस सपोज अगर मैं आपको ये देती, N2O4 है. नाउ दिस इज कन्वर्टेड टू 2NO2. द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. अब मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया है, which changes will increase the yield of NO2. We want to get more NO2. So how can we change the pressure and temperature कि हमें ज्यादा मिले? मैं डाउनवर्ड एरोस का मतलब है दोनों को कम कर रही हूँ, ठीक है. इंक्रीज एंड डिक्रीज, A, B, C is this, and D is this. Try to think over it. Both of them are guesses, and then let me know your answer कि आपको कौन सा आंसर ठीक लगता है. ए. Fatma is saying A. Okay. Laiba, what is your answer? I think A2. A. You think A too. Okay, let us try to work out. So basically on the reactant side, we do have like, 1 mole, and on the product side we do have 2 moles. So I know that I want to shift the equilibrium towards the right hand side. So by decreasing the pressure, equilibrium will move towards the side that has more moles. So it means pressure को कम करने से the equilibrium will move towards the right hand side या forward side,
एंड दैट इज द ओनली वे जिसके थ्रू मैं कह सकती हूँ कि NO2 मुझे ज्यादा मिलेगी प्रेशर के थ्रू। अब हमने वो कर दिया, दैट मीन्स कि या तो ए है या बी है, सी डी नहीं हो सकते। उसके बाद है टेम्परेचर। अब हमने क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर इंक्रीज जो होता है वो एक्सो को कहाँ लेके जाता है, लेफ्ट या बैक पे। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज एंडोथर्मिक रिएक्शंस को कहाँ लेके जाता है, फॉरवर्ड या राइट पे। अब उसने ये जो लिखा है कि पॉजिटिव है, इसका मतलब है रिएक्शन इज एंडो। तो अब मुझे सोच के बताओ कि फिर आंसर क्या बनता है। हमें NO2 ज्यादा चाहिए ना, तो हम NO2 अगर ज्यादा चाहिए तो हम क्या करें, टेम्परेचर डिक्रीज ठीक कर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ज्यादा करेंगे। देखो एंडो है ना, तो फिर तो मुझे फॉरवर्ड जाएंगे। आगे जाना है, तो हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पे जाएगा, फॉरवर्ड पे जाएगा तो NO2 ज्यादा मिलेगी। फातिमा बात समझ आई। नहीं। देखो फातिमा मेरी बात सुनो, ये हमारे दो पॉइंट्स हैं। टेम्परेचर इंक्रीज एक्सो को पीछे को लेके जाता है, एंडो को आगे को, सही। अब आप देखो आपका रिएक्शन क्या दिया हुआ है, एंडोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक है, इसके ऊपर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो ये फॉरवर्ड या राइट साइड पे जाएगा ना। जी। अब यहाँ पे देखो अगर एंडो है, इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं तो ये आगे को जाएगा, आगे को क्या पड़ा हुआ है। ओके। NO2, यस। यस, सो दिस इज हाउ मैं कहूंगी प्रेशर को कम करेंगे और टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे तो आई विल बी गेटिंग मोर NO2, राइट। इस तरह से ये करना था। ओके, सो व्हाट इफ आई से ओके, लेट अस सपोज अगर मैं ये कहती, मैं आपको ये दिया है N2O4, दिस इज अ गैस एंड देन दिस इज दिस। अब मैंने 4 स्टेटमेंट्स लिखी, इसको जरा गौर करिएगा। अब यहाँ उसने आपको क्वेश्चन ये दिया है, उसने कहा है व्हाट डज द टर्म डायनेमिक इक्विलिब्रियम मीन्स। अब इसको देखते हुए जरा डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को फिगर आउट करने की कोशिश करो एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों को क्या समझ आती है। एनी हिंट, एनी गेस, कुछ भी। सी। अच्छा, सो लाइबा थिंक्स इट्स सी। ओके फातिमा, व्हाट डू यू थिंक। मैम, डायनामिक इक्विलिब्रियम की वो क्या है डेफिनेशन? अच्छा खुद सोचने की कोशिश करो। वही इक्विलिब्रियम, मैं पूछ। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बैलेंस है। बैलेंस है एक तरह से। अब बैलेंस आपको क्या समझा रहा है, मैं यही तो आप लोगों से पूछ रही हूँ। कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा तो क्या हुआ। नहीं मैम, मुझे उस पर सी आ रही है कि वही तो मैं समझा रही है। अच्छा। देखो, सी हम्म, पार्ट। अच्छा दोनों ने कहा सी, दोनों ने कहा ये दोनों का ठीक है, दोनों का गलत बच्चे। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इट इज अ पॉइंट इन इक्विलिब्रियम when the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction। जब दोनों रेट्स बराबर हो जाएं एंड वी से कि concentration of reactants and products does not change। डी। ये चेंज नहीं होती कंसंट्रेशन। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि इक्वल है। इसका मतलब है कि जब रेट बराबर हो गए, जितना रेट आगे है उतना ही रेट पीछे को होगा,
और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अब अपनी कॉन्सेंट्रेशन को मजीद चेंज नहीं करेंगे. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स दैट यू नीड टू राइट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम. अब इसको देखते हुए आप लोग मुझे बताओ कि आंसर क्या समझ आता है. B. That's going to be D. The rate of forward and backward reactions are equal. सिर्फ एक और अब क्वेश्चन कर लेते हैं. अब उसको थोड़ा सा ध्यान से देख के मुझे बताना आप लोग. अगर मैं आपको ये देती N2 plus 3H2 will give 2NH3. This is the equation for the Haber's process. और मैंने कहा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर इन दिस प्रोसेस. पहला है लेस एमोनिया फॉर्म्स gas and gas. The second is more ammonia forms. The third is less heat is produced. And the fourth is reaction slows down. जी क्या समझ आता है? How many moles of reactant do I have on the reactant side? 4. 4. And how many moles do I have on the product side? 2. So if I am increasing the pressure, what is going to happen to the position of equilibrium? Forward. It's going to move towards the forward or right side. So if it is moving towards the forward or right side, how much ammonia is going to be formed? Whether it will be less ammonia or more ammonia? More. So it will be more ammonia. So what is going to be the right answer according to this? B. That's going to be B. So A can't be the right answer. The C option says that less heat is produced. Always remember, whenever you have exothermic reactions, this clearly shows that मैम तो reaction फिर is लेस producing. अमोनिया का फॉर्म होगा. लेस एमोनिया कब फॉर्म होगी? सो मेनी वेज. आप प्रेशर को कम कर दो. आप प्रेशर को कम करोगे, रिएक्शन पीछे को जाएगा, एमोनिया कम बनेगी. आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, इक्विलिब्रियम लेफ्ट या बैक साइड पे चला जाएगा, आपको कम एमोनिया मिलेगी. So look, there are multiple ways. Anything that shifts the equilibrium to the left या back side is going to decrease ammonia. लाइबा बात समझ आई? जी जी. ठीक है. तो आप लोगों ने इसको एग्जैक्टली इस तरीके से करना. और एक मैंने जो आपको ये वाली एग्जांपल करवाई है ना, ए वाली, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वो आपको ना इस ए के ऊपर हमेशा बड़े क्वेश्चंस दे के कहेगा कि बताओ प्रेशर का क्या इफेक्ट है. और ये जो मैंने इसमें स्टेटमेंट ऐड करवाई है, ये डिस्क्रिप्शन में लिखनी होती है कि मोल्स आर सेम. तो समटाइम्स वो ये बहुत पूछ लेता है. सो दिस इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो. आर यू गाइस क्लियर अबाउट टुडेज वर्क? Yes. Yes. अच्छा, अब मैंने